Hello my dear lovely students, welcome back to your class. Tell me one thing my dear students, how was your Monday test? I think it was very nice because the questions are not so much hard. The questions were easy. So I hope you have done well in your Monday test. Now Monday test is over. So what we will do? We will get back to our studies. We will concentrate now in our studies. So before starting the studies, you like to eat something or you like to drink something? आज के अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले कुछ खा ले, कुछ पी ले, भूख लग रही है. क्या खाएंगे? चिप्स, कुरकुरे, सैंडविच, पिज्जा, पास्ता? No. You should eat healthy food. And every day you should drink 1 glass of milk. हमें रेगुलर रोज 1 ग्लास दूध का पीना चाहिए. Now you might be thinking why teacher is talking about the food now. I am hungry? No, I am not hungry. See my dear students, for healthy living, our body should be fit, fine, healthy and wealthy. And how our body will be healthy and wealthy? By eating chips, kurkure? By eating like this snacks? No. By eating a healthy food. And healthy food is that food which is cooked in home. Healthy food वही है जो घर में बनता है, जो अपनी मम्मी बनाती है अपने लिए, because it is safe, secure, clean. The most important thing is the food is very clean. So we should always eat home food, homemade food. Now you are thinking why teacher is talking about food today? See, our today's lesson is related about food. आज का हमारा जो लेसन है वो फूड के ऊपर ही रिलेटेड करता है. So see, your EVS book page number 163. This our lesson number 5. And what is the name of our lesson? The name of our lesson is food. Clear? What is the name of our lesson? The name of our lesson is food. The food we eat. And for healthy living, I had said you before only, for healthy living we should eat healthy food which is cooked in home. Because homemade food is cooked, healthy, safe and clean. घर में बना हुआ खाना सेफ है, क्लीन है, हेल्दी है, इसलिए हमें हमेशा घर में बना हुआ खाना ही खाना चाहिए. बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. इग्नोर आउटसाइड फूड. बाहर के खाने को हमेशा इग्नोर करना चाहिए. एंड इग्नोर ईटिंग वेफर्स ऑल्सो, लाइक कुरकुरे, चिप्स, सैंडविचेस, लाइक दिस. बाहर के कुरकुरे, चिप्स ये सब नहीं खाना चाहिए. यू शुड डेली ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क. आपको हमेशा डेली 1 ग्लास ऑफ मिल्क पीना चाहिए, बिकॉज मिल्क इज द वेरी नाइस प्रोटीन. मिल्क से अच्छा प्रोटीन है ही नहीं. एंड मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. 1 ग्लास दूध का पूरे कंप्लीट फूड है. अगर आप खाना नहीं खाओ ठीक है, तो अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, सो यू शुड ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ मिल्क. खाना नहीं खा रहे हो तो 2 ग्लास पी लो दूध के. बट इफ यू आर हैविंग फूड देन ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क. लेकिन मिल्क आपको रेगुलर पीना चाहिए, बिकॉज मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. दूध एक कंप्लीट फूड है. सो today's lesson is related about food. So which type of food you should eat? You should eat proteinous food, healthy food, bodybuilding food which are rich in vitamins, carbohydrates, nutrients. You should eat like these types of food. And my dear students, let me tell you one thing also. When you eat food, you should eat green leafy vegetables. Green leafy vegetables, because green leafy vegetables contains many types of minerals, vitamins, proteins.
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सारे टाइप के विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं. सो यू शुड ईट ग्रीन लीफी vegetables also, and you should eat one fruit daily. Why fruit? Fruit is also compulsory for the body. In fruit many other proteins are there. If you are not eating fruit, then you should drink juice, fruit juice. See, fruit juice you should eat, and homemade juice, not from the outsiders, because outsiders may mix them different types of chemicals for taste, flavor, color. They mix different types of flavors in that, which is dangerous for our body. So we should drink homemade fruit juice. See, homemade fruit juice. You can make fruit juice in the house also. It is very simple. And here, see, vegetables. We should daily eat vegetables and daily drink 1 glass of milk. So here is the lesson of food. So are you ready? I think you are ready, because you know which type of food you should eat. You are eager to know. So come, we will start our lesson for our food. Come. Come, my dear students, we will start our today's chapter. Take your page number 163. Got it? Chapter number 5, our food. Before starting the chapter, let me remind you one thing, my dear students. When I will read the lesson, you will not look here and there. You will keep your finger on the line. This will help you to know that where I am reading. And keep pencil also near you. Why pencil? Because we will underline if we find some hard words. So come, without wasting much of our time, we will start our today's lesson, our food. All living organisms need food to live. Food gives us energy and makes us strong. It builds the body and helps to grow. It regulates the activities of the body and we work, study and play. It repairs the body parts. It helps to fight against diseases and we enjoy good health. Now see, my dear students, as you know that all living organisms need food to live. हमें जीने के लिए खाना तो पड़ता ही है ना? तो वो खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है? See, food give us energy and make us strong. जैसे हम खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी यानी कि शक्ति मिलती है और हम स्ट्रांग एकदम मजबूत फील करते हैं. इट बिल्ड्स द बॉडी एंड हेल्प अस टू ग्रो. फूड हमारे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. जैसे पहले हम छोटे बच्चे रहते, फिर हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है. ये करते करते हम छोटे से बड़े ग्रो होते हैं. It repairs the body parts. It helps to fight against diseases and we enjoy good health. Means food is a main thing in our health, in our life. Food एक main चीज है अपने life में, क्योंकि it regulates activities, the work we do, the study we do, and we play. So food help us. Okay. So let's see more. Now different kinds of food. Now we have seen the role of food. हमने यहाँ food का रोल देख लिया अपनी लाइफ में. But now we will see different kinds of food. मतलब अलग अलग तरह के food, मतलब खाना. कौन सा खाना हमारे लिए सेफ है, कौन सा खाना हमारे लिए अनसेफ है. We will see this in different kinds of food. We eat different kinds of food. Every type of food contains some important things called nutrients. Now my dear students, nutrients is a hard word. So what we will do, we will underline the word nutrients and you will find out the meaning and you will write the meaning. Nutrients का आप meaning find out करके लिखोगे. The different food we eat, we eat different kinds of food. Every type of food contains some important things called nutrients. अब हम अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं. हर टाइप के फूड में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूट्रिएंट्स. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और यूज़फुल रहता है. दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स. नाउ
न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स में रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स। मीन्स ये सब मिला के न्यूट्रिएंट्स बनता है और वो अपने बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल अंडरलाइन द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। Salts, vitamins and water means they are carbohydrates, protein, fat, mineral, salts, vitamins and water। ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब न्यूट्रिएंट्स में रहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ रहता है? अलग अलग काइंड ऑफ फूड। मीन्स न्यूट्रिएंट्स आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड में मिलेंगे, जो हम घर पे खाना खाते हैं ना, उसमें मिलेंगे। Our body needs these nutrients very much. The light type of food contains these nutrients in the right proportion for good health. The food can be grouped as follows. Means a body needs these nutrients means हमारी बॉडी को ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन्स, वाटर, इन सब की ज़रूरत है। We need this। और ये सब कहाँ मिलता है? न्यूट्रिएंट्स में। सो इन लाइट टाइप ऑफ फूड, लाइट टाइप ऑफ फूड मीन्स ज़्यादा स्पाइसी नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं, हाई क्वांटिटी का नहीं। मीन्स लाइट टाइप ऑफ फूड कंटेन्स दिस न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। मतलब ये सब न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में मीन्स सही मात्रा में रहेगा खाने में, तो वो खाना अपने लिए हेल्दी है, मीन्स सेहतमंद है। नाउ द फूड कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। नाउ फूड्स आर ग्रुप्ड। नाउ फूड कैसे ग्रुप हो सकते हैं? हाँ, फूड को ग्रुप कर सकते हैं, एक अनहेल्दी फूड, एक हेल्दी फूड, एक हाइजीनिक फूड, ऐसे ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ कितने ग्रुप्स हैं? फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड्स, सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड्स। अब ये क्या है? तीनों ग्रुप है। कौन से ग्रुप है? फूड्स के ग्रुप है, ये फूड्स के ग्रुप है। फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड मीन्स वो फूड हमें जो एनर्जी देता है। अब कुछ भी आप खा लो तो उससे एनर्जी तो मिलती नहीं है ना, तो वही फूड्स खाना कंपलसरी है जो हमें एनर्जी देता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब फूड में हमें एनर्जी कैसे मिलेंगी? उसी में जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट रहेगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। और सेकंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी बिल्डिंग फूड? बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब क्या? डंबल्स बनाना, पुशअप्स मारना? नो। बॉडी बिल्डिंग फूड्स मीन्स वो फूड खाना अच्छा है जिसमें प्रोटीन्स हो। दिस विल हेल्प योर बॉडी टू ग्रो। बॉडी बिल्डिंग का फूड मतलब ये है वो फूड खाइए जिसमें प्रोटीन्स है, और ये प्रोटीन्स आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, जैसे छोटे से बड़ा होने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड्स। नाउ प्रोटेक्टिव फूड मीन्स which is protected. See, protective food means in which minerals and vitamins are present. Protective food उसको बोला जाएगा जिसमें minerals and vitamins present रहेंगे. This will protect us from the illness. Protective food मतलब protective food हमें protect करेगा बीमारियों से, illness से. Got it? Now next is energy giving food. अब यहाँ से हम समझ गए तीन ग्रुप है फूड्स के, ठीक है। First we will see energy giving food. Foods containing carbohydrates and fats are called energy giving foods. Sugar and starch are rich in carbohydrates. They give us heat and energy. Sugar is present in all the fruits, honey, beetroot and sugarcane. Starch is present in rice, wheat, potato, sweet potato, tapioca and yam. These are energy giving foods. Now my dear students, energy giving food. Energy giving food वो फूड होता है जो खा के हमें एनर्जी मिलती है। समझ में आया? अब हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, क्या खाने से मिलेगी? सी, फ्रूट्स, हनी, बीटरूट एंड शुगर केन। यानी कि फ्रूट्स, हनी और बीटरूट में क्या प्रेजेंट रहता है?
sugar, and sugar is rich in starch and carbohydrates. Sugar किसमें ज़्यादा है? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब शुगर को हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी अच्छी हो जाएगी। एंड स्टार्च इज प्रेजेंट इन राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड टेपिको। मतलब स्टार्च किस किस में प्रेजेंट रहता है? पोटैटो में, आलू, स्वीट पोटैटो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। मतलब ये सब क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। ये फूड खाने से हमें एनर्जी यानी कि ताकत मिलती है। गॉट इट? समझ में आया? नाउ फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ फैट्स क्या है? फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। नाउ ऑयल सीड्स लाइक कैश्यू नट्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टर्न द पेज। कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स, कोकोनट्स, वनस्पति घी, eggs, milk and butter have fat in them. These are energy giving foods. Now got it, my dear students? Cashew nuts, coconut, vanaspati ghee, they are rich in fat and this give us energy. Means ghee, butter, घी, ये सब कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स, ये सब खाने से फैट बढ़ता है। And they are energy giving food also, means they give us energy. Now next is body building food. Now body building food means what? Come, we will see. Foods containing proteins are body building food. Now what do you understand by body building? Food containing proteins means वो फूड जिसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन कंटेन करता है, आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। वी नीड प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग अप द बॉडी। प्रोटीन्स हमें इसलिए कंपलसरी है क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को हेल्प करता है बिल्ड करने में मतलब ग्रो करने में, छोटे से बड़ा होने में। वी नीड प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग अप बॉडी। Protein repairs the body tissues. Babies and young children need more proteins than adults. मतलब babies and young children मतलब छोटे बेबीज़ को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को और छोटे बच्चों को ये प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है क्योंकि बच्चों में प्रोटीन कम होता है क्योंकि वो खाना कम खाते हैं। That's why for babies and young children need more protein than adults. छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर अगर कंपेयर करो बड़ों से तो। नाउ मीट, फिश, एग्स, मिल्क, दाल, सीरियल्स, बीन्स, पीस, सोयाबीन्स एंड मिल्क आर रिच इन प्रोटीन्स. These are body building foods. Now see my dear students, fish, milk, got it? Cereals, dal, बीन्स, पीस, सोयाबीन्स एंड मिल्क आर रिच इन प्रोटीन. मतलब ये जो खाना है ये सब ये किस चीज़ में रिच है? प्रोटीन्स में. और मिल्क इज़ द बेस्ट पार्ट इन प्रोटीन. मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तो छोटे बच्चों को मिल्क पीना चाहिए. चिल्ड्रंस यू शुड ड्रिंक मिल्क क्योंकि मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है. दिस विल हेल्प your body to grow up. So these are body building foods. Now we have seen body building foods. Now we will see protective food. Now what do we mean by protective foods? Foods rich in vitamins and minerals are called protective foods. Now foods that are rich in vitamins and minerals means वो फूड जो मिनरल्स और विटामिन्स में रिच है. मतलब वो खाना जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा है वो प्रोटेक्टिव फूड है. प्रोटेक्टिव फूड वो फूड हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा? द फूड विल हेल्प अस द फूड विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलनेस. वो फूड हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा? वो फूड हमें
इलनेस यानी कि बीमारी से प्रोटेक्ट करेगा। दे फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, वो जो प्रोटेक्टिव फूड है, ये प्रोटेक्टिव फूड ये हमें डिसीजेस से फाइट करेगा, मतलब बीमारियों से फाइट करेगा। दे कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड इम्प्रूव आवर आईसाइट। इट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिसीजेस। Many green leafy vegetables, fresh fruits, banana, orange, guava and vegetables like carrot, beetroot, lady's finger are rich in vitamins and minerals, salts. Now my dear students, see fruits and vegetables. As you know that eating vegetables and fruits are very much it's very much beneficial for our body. Why it is beneficial for our body? Because fruits and fresh vegetables help us to fight against diseases. fresh fruits और fresh vegetables खाने से हमारे बॉडी में शक्ति आती है फाइट करने के लिए। किससे फाइट करने के लिए? डिसीजेस यानी कि बीमारियों से फाइट करने के लिए। See, like vegetables like carrot, beetroot, lady's finger are rich in vitamins and mineral salt. See, कैरेट यानी कि गाजर, बीटरूट और लेडीज फिंगर ये सब किस में रिच रहते हैं? विटामिन और मिनरल सॉल्ट में। और जहाँ तक मुझे पता है छोटे बच्चे लेडी फिंगर यानी कि भिंडी नहीं खाते। सो चिल्ड्रंस यू शुड ईट वेजिटेबल्स। आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों खाना चाहिए। ये खाने से आपकी बॉडी प्रोटेक्टिव रहेगी और सेफ रहेगी। नाउ वी विल मूव अगेन नेक्स्ट, मिल्क। मिल्क दूध, जिससे सारे बच्चे दूर भागते। सो वी विल सी मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। सी, तो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड मतलब दूध एक पूरा कंप्लीट खाना है। और छोटे बच्चे तो दूध पीते हैं नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स यू शुड ड्रिंक मिल्क। आपको मिल्क पीना चाहिए क्योंकि मिल्क में पूरे फूड की प्रोटीन्स मिनरल्स रहते हैं। सी, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क दूध एक पूरा कंप्लीट खाना है। सो वी विल सी मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क इज सुपीरियर टू अदर फूड्स। इट हेल्प अस टू ग्रो, गिव अस एनर्जी, पोर्शन the body from diseases and heals wounds and injuries. Now milk is superior मतलब मिल्क सबसे ज़्यादा पावरफुल है सब खानों में से। मिल्क का एक ग्लास, दूध का एक ग्लास पी लो, आपको इतनी एनर्जी मिलेगी बिकॉज इट हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी। मीन्स दूध हमें बढ़ने के लिए हेल्प करता है, दूध हमें एनर्जी देता है। ठीक है, दूध हमें क्यों एनर्जी देता है? हमें डिसीजेस से फाइट करना रहता है। एंड हील्स वुंड्स एंड इंजरीज, अगर हमें चोट लग जाए तो उसको हील करने के मतलब रिपेयर करने के लिए या अंदर से घाव भरने के लिए दूध हेल्प करता है। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड विटामिन्स। अब दूध में क्या क्या रहता है? प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड विटामिन्स। ये सब हेल्प किससे करता है? अपनी बॉडी को। सो इट इज कॉल्ड द कंप्लीट फूड। अब देखिए मिल्क में क्या क्या है? मिल्क में प्रोटीन्स है, मिनरल फैट्स है, विटामिन्स है ना, कितनी सारी चीज़ें हैं। सो मिल्क इज अ बेनिफिशियल फूड। मतलब मिल्क एक बेनिफिशियल फूड की तरह है जिसको हमें रोज पीना चाहिए। सो it is meant for the young and old, for the sick and healthy. Babies live mostly on milk for some time. Vegetarians should drink more milk than non-vegetarians. Now see, देखिए बेबीज, जो छोटे बेबीज है वो ज़्यादातर दूध के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं क्योंकि वो छोटे रहते हैं, उनको टीथ नहीं रहता है, तो वो खाना कैसे खाएंगे? तो वो क्या करते हैं? दूध पीते हैं। एंड वेजिटेरियंस, जो वेजिटेरियंस हैं यानी कि जो वेज खाना खाते हैं वो लोग
दूध को ज़्यादा पिए। बिकॉज वेजिटेरियन पीपल डू नॉट ईट नॉन वेज। जो वेजिटेरियन खाते हैं वो नॉन वेज नहीं खाते और उनका हल्का सा प्रोटीन अधूरा रहता है। तो प्रोटीन अपने बॉडी में प्रोटीन की मात्रा पूरी करने के लिए उनको क्या पीना चाहिए? मिल्क पीना चाहिए। Now my dear students, we will move towards 165 page number. Now we will see water. इसके पहले हमने देखा था milk, अब milk के बाद है water. Though water does not contain any carbohydrate, fat, protein or vitamin, it is needed for all the normal activities of the body. See my dear students, water does not contain any carbohydrate. Means water में कोई भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट नहीं है. कोई भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट मीन्स फॉर एग्जांपल फैट, प्रोटीन और विटामिन्स, ये सब कहाँ नहीं है? पानी यानी कि वाटर में नहीं है. देन ऑल्सो वाटर इज वेरी कंपल्सरी. मीन्स वाटर इज नीडेड फॉर ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. मतलब वाटर बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर करती है, क्योंकि बॉडी के हर एक एक्टिविटी में वाटर प्रेजेंट रहता है. आवर बॉडी इज हाफ कवर्ड विथ वाटर. हमारी बॉडी आधी कवर रहती है किससे? पानी से. इवन इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. नाउ वाटर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. वाटर हमें कैसे हेल्प करता है? हमारे पाचन क्रिया में. पाचन क्रिया मीन्स डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स द फूड वी ईट इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट. मतलब जो खाना हम खाते हैं उसे पचाने के लिए वाटर हेल्प करता है. वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी. वाटर हमारे बॉडी के सारे नसों में, टिश्यूज को क्या बोलते हैं? नस में प्रेजेंट रहता है. इवन ब्लड कंटेन्स वाटर इन इट. हमारे ब्लड में भी, हमारा जो खून है उसमें भी हल्का सा वाटर प्रेजेंट रहता है. Water helps us to maintain the body temperature. It helps to repair and build body tissues. We should take enough water. Water can be taken in the form of milk, tea, coffee or fruit juice. Vegetables and fruits also supply water to our body. See children, वाटर अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है. क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी के हर एक पार्ट में है. टिश्यूज़ यानी कि सेल में है, ब्लड यानी कि खून में है. इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर. मीन्स हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी वाटर के थ्रू हेल्प होता है. एंड वाटर कैन बी टेकन इन मैनी काइंड. मतलब हमारे बॉडी में वाटर अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि पानी पियो तो ही वाटर होगा. यू कैन ड्रिंक मिल्क, यू कैन ड्रिंक टी, यू कैन ड्रिंक कॉफ़ी, यू कैन ड्रिंक फ्रूट जूस. ये सब में वाटर तो रहता ही है. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. फ्रूट्स में भी वाटर्स रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, तरबूज. तरबूज आप खाओ, आपको तरबूज तो आप खाओगे उसमें वाटर की प्रेजेंट बहुत रहता है तरबूज में, तो आपका वाटर भी उससे कंप्लीट हो जाएगा बॉडी में. सो vegetables and fruits also supply water to our body. Now my dear students, for today it is enough. It's the time to take leave. So my dear students, I hope you all have understood the lesson. So you know which type you have to which type of food you have to eat. Proteinous food, bodybuilding food, energy giving food. These are very helpful to keep our body healthy. So my dear students, it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, eat healthy food, drink milk daily, and don't trouble your parents. I'll see you soon. Bye bye.